Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is the lecture of our HR01, that is talent management. So today we will discuss about what are assessment centers. So assessment centers क्या होते हैं, आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे. So let's start with our topic. So what are assessment centers? An assessment center is a process used to make personal decisions in which participants engage in a variety of exercises and have their performance evaluated by multiple assessors. Assessment centers, assessment किसके बारे में, assessors evaluate करते हैं जब कोई भी चीज, that is all under assessment. तो assessment centers भी organization के होते हैं, particular teams, organizations, departments, employees को assess करने के लिए. So this is all in this. तो यहाँ पर भी क्या होता है, basically personals के regarding, workers के regarding assessment centers decision लेते हैं by evaluating their performances regarding their working tasks assigned to them. The goal of an assessment center is to stimulate job tasks so that an applicant can demonstrate skills or characteristics that would be effective on the job. Basically, assessment centers का रोल यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छे से अच्छा वर्क करें, वेल मोटिवेटेड रहे एंड अपने टास्क को पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाए. सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर assessments. So, according to the International Task Force on Assessment Centers guideline, assessment center की regarding guidelines mention की हैं by International Task Force. वो guidelines क्या हैं? First point is conduct job analysis of relevant behaviors. So different individuals have different behaviors, and so we will first of all we will conduct the job analysis, and we had discussed this already. What is job analysis? We had discussed its components also, that is job description and job specification. Then classify participants' behaviors into meaningful and relevant categories. और जितने भी participants उनके behavior को भी हमें क्या करना पड़ेगा? Classify करना पड़ेगा according to their relevant categories. Then use techniques that are designed to provide information for evaluating the dimensions previously determined by job analysis. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे और हमें क्या गाइडलाइंस मिली है कि जो टेक्निक्स आपने डिजाइन की थी इंफॉर्मेशन इवैल्यूएट करने के लिए, आप उन टेक्निक्स को यहाँ पे यूज किया जाए फॉर डिटरमाइनिंग जॉब एनालिसिस. Then involve multiple assessment techniques such as tests, interview, questionnaires, sociometric devices and simulations. इसके अलावा हम assessment के लिए multiple assessment techniques यूज कर सकते हैं like test, interviews, questionnaires, etc. Then include a sufficient number of job-related simulations, allowing opportunities to observe the candidate behavior related to each competency dimension being assessed. अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली कैंडिडेट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की बात की जा रही है. रिगार्डिंग बिहेवियर किस चीज में हमें ऑब्जर्व करना है, रिगार्डिंग द डायमेंशंस इन विच दे आर असेस्ड. यूटिलाइज सेवरल असेसर्स टू इवैल्यूएट ईच पार्टिसिपेंट. देन एम्प्लॉय थॉरली ट्रेन्ड असेसर्स. और बेसिकली हमें असेसर्स भी ऐसे रखने चाहिए जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रेन्ड है, जो प्रॉपरली असेस कर सकते हैं. Provide a means for assessors to record their observations of participants' behavior as it occurs. अब असेसमेंट का जो भी assessors assess कर पा रहे हैं regarding a particular behavior of an employee, they have to record it also. Then involve participation of an assessor's report. Then base the integration of behaviors on the pooling of assessors' information or upon a statistical integration process validated in accordance with professionally accepted standards. तो हम statistical information क्या है को भी यूज कर सकते हैं for doing assessments for particular personals in an organization. Behavioral dimensions that are frequently measured in assessment centers. Basically behaviors को जज करने के लिए assessment centers में कौन से behavioral dimensions ज़्यादा यूज हो रहे हैं, that are including planning and organizing, leadership, oral communication, tolerance for stress. इन चीज़ों के ऊपर assess किया जाता है कि आपका oral communication कैसा है, tolerance for stress क्या है, and how kind of initiatives you will take. Participants
और उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज यूज की जाती है पार्टिसिपेंट्स को असेस करने के लिए। दैट इज इन बास्केट एक्सरसाइजेस इन विच पार्टिसिपेंट responds to series of administrative problems that stimulate typical managerial tasks. In basket exercises, basket में आपने स्लिप्स डाली और उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के रिगार्डिंग आपने इसको असेस करने के लिए किया है। इन बास्केट प्रोसेस यूज यहाँ पर, और जो भी वहाँ पर जो भी आपको वर्क करना है एडमिनिस्ट्रेटिव के रिगार्डिंग उस स्लिप में है, आप उसे देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना बिहेवियर शो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फिर असेस किए जाएंगे। नेक्स्ट इज लीडरशिप ग्रुप डिस्कशन इन विच a group of participants without an assigned leader must arrive at a group solution. यहाँ पे लीडरशिप ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है, वहाँ पे कोई भी उनके ऊपर लीडर अपॉइंट नहीं किया जाता और फिर उन्हें कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है, वो उसका ग्रुप सोल्यूशन निकालते हैं स्पेसिफाइड प्रॉब्लम का और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग असेस किया जाता है। रोल प्लेज in which participants are involved in a simulation of situation that occur on the job. Role play किसी भी particular person का role play करना है, आप रियल में उस जॉब पर या रोल पर या पोजीशन पर नहीं है, बट यू हैव टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर रोल, जैसे कि आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक दिस, then the behavior of a particular employee will be assessed. Interviews in which participants typically are questioned about how they have handled particular work situation in the past and how they would respond to specific work situation in the future. Interviews लिए जाते हैं, इंटरव्यूज से भी असेस किया जाता है पर्सनल्स के बिहेवियर को। यहाँ पे पूछा जाता है कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन उन्हें दी जाती है और उनसे पूछा जाता है आपके अगर ऐसी सिचुएशन पहले भी फेस की है तो पास्ट में आपने उसको कैसे सॉर्ट आउट किया और अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आप उससे कैसे डील करेंगे। These all are the parameters for assessment. Management games in which participants must work cooperatively to reach mental and physical challenges. Management games खिलाए जाते हैं जिसमें उनका कॉपरेशन चेक किया जाता है, पर्टिकुलर बिहेवियर चेक किया जाता है। This is also a technique used for assessment. So, evaluation of assessment centers participants can be used for employee selection decision. तो जो भी हम असेसमेंट सेंटर्स के थ्रू असेसमेंट या असेसर्स के थ्रू इवैल्यूएशन किया जाता है उन पार्टिसिपेंट्स का, उन्हीं में से ही वो पार्टिसिपेंट को ऑन द जॉब रखने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी इनडायरेक्टली साथ में कर रहे होते हैं। उसी में से उन्हें हायर करना या उसमें से किसी को प्रमोशन देना है, तो ये सारी चीजें भी साथ ही साथ चलती रहती हैं। एंड टू हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, और साथ ही साथ असेसमेंट्स करने से हमें ये भी पता चलता है कि कहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स की रिक्वायरमेंट है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ असेसमेंट सेंटर्स इज टू इवैल्यूएट पार्टिसिपेंट्स मैनेजमेंट पोटेंशियल। बेसिकली असेसमेंट सेंटर से ये इवैल्यूएट किया जाता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनका मैनेजमेंट पोटेंशियल क्या है। दैट विल आल्सो बी जज्ड अंडर असेसमेंट सेंटर्स। Then, when used for selection or promotion decisions, the emphasis is on identifying participants who do unessential job performance dimensions. जब हम selection या promotion decisions ले रहे होते हैं while assessing them, तो basically जो participants हैं उनकी assessors क्या करते हैं, उनकी basically job performance dimensions को evaluate करते हैं। Then, when used for training and development purpose, the focus is on identifying partnership deficiency. और जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए असेस कर रहे हैं तो बेसिकली फोकस किस पर करेंगे, उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के डेफिशिएंसीज दिखाएगा पर्टिकुलर जॉब। Then the feedback and employee development suggestion that result from an assessment form the basis for training. उसके बाद एक फीडबैक होता है, एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि आपको इस चीज में ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म फिल किया जाता है, फिर उसी के रिगार्डिंग उसको असेसमेंट के थ्रू ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट सेंटर्स कैन serve as needs assessment programs that identify employee development and hiring needs. तो indirectly assessment centers organization की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए वर्क कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं एम्प्लॉयज के प्रमोशन के लिए, न्यू हायरिंग्स के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सेट्रा। So these all things comes under assessment centers. Next topic we will discuss today is
मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी, वी शुड कीप इन माइंड टू मिनिमाइज सिलेक्शन एरर्स, यूजिंग गुड gut for to find great talent is fine as long as you gather fact। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्जेक्टिविटी ओवर ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो यही है सिलेक्शन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए। देन मेकिंग हैस्टी डिसीजंस, वी डोंट हैव टू मेक हैस्टी डिसीजंस। वो अपने लिए भी कंफ्यूजिंग है एंड फॉर इंटरव्यूअर और इंटरव्यू बोथ विल बी कंफ्यूज। तो सिलेक्शन के रिगार्डिंग हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर सिलेक्शन एरर्स। तो थर्ड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी फॉर सिलेक्शन एरर। Even worse selection error is made when managers don't view selection as an important job responsibility। कभी कभी तो हम बहुत गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन भी कर लेते हैं, और वो कब होता है, जब जो मैनेजर है वो प्रॉपरली सिलेक्शन प्रोसेस को व्यू नहीं कर रहे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो द सिलेक्शन एरर, वी शुड मिनिमाइज इट। देन लैक ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन ऑन कैंडिडेट्स। अगर हमारे पास जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं है तो भी कई बार हो सकता है कि हमारे सिलेक्शंस गलत हो जाए। अगर प्रॉपरली हम उनके रेफरेंस चेक नहीं करें या उनके बारे में हमने इंटरव्यू से पहले कुछ देखा नहीं, पूछा नहीं, चेकिंग, हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें रेफरेंसेस चेक करने चाहिए, उनका हर चीज हमें पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उनके बारे में। सो इफ वी डोंट हैव देन इट इज ऑल्सो अ सिलेक्शन एरर। अनट्रेन्ड मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट ही प्रॉपर ट्रेंड नहीं है तो मैनेजमेंट की साइड से मिस्टेक्स होंगी तो सिलेक्शन प्रोसेस भी पॉजिटिवली हुआ कि रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा। सो वी शुड हैव अ ट्रेन्ड मैनेजमेंट। देन द रॉन्ग पीपल आर डूइंग द हायरिंग। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो रहा है, you often find the wrong people are selecting new hires, human resources and the line manager who are talent। बेसिकली क्या हो रहा है कि वो उस पोस्ट पे भी नहीं है पर्सन और किसी और को बैठा दिया गया जिससे उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो ही इंटरव्यूज ले रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस कर रहा है। और अगर रॉन्ग पीपल के थ्रू हायरिंग हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती एंड इट इज ऑल्सो अ एरर ऑफ सिलेक्शन। सो नेक्स्ट इज सम थिंग्स यू कैन डू टू मिनिमाइज। तो और हम इसे मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वेट 30 मिनट्स। यहाँ पे वेट 30 मिनट्स का मतलब है हियर ऑल द एविडेंस प्रो एंड कॉन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। इन द केस ऑफ इंटरव्यू वेट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर द इंटरव्यू स्टार्ट्स बिफोर कंक्लूडिंग if the person is a possible hire or not। तो हमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, 30 मिनट्स के लिए ब्रेक करना चाहिए। ये नहीं इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू आया और हमने डिसीजन ले लिया, हमें 30 मिनट्स वेट करना चाहिए, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। दिस पोज डिले विल मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। आफ्टर 30 मिनट्स यू विल डिस्कवर द गुड आर नॉट एज गुड एज थॉट एंड बैड आर नॉट एज बैड। तो 30 मिनट्स के टाइम पीरियड के अंदर हम आराम से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है जिसे हम गुड समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं वही अच्छा हो और जिसे हम बैड समझ रहे हैं वो बैड हो। कभी कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है। Then don't give anyone on hiring team a full yes or no vote। हमें कभी भी डायरेक्टली yes या no वोट हायरिंग टीम के लिए नहीं देनी चाहिए। यूज अ टैलेंट स्कोर कार्ड, हमने बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ा हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं यूज अ टैलेंट स्कोर कार्ड लिस्टिंग फॉर ऑल competencies and factors driving on the job success, making assessment। These are about 10 factors on the form of things। बेसिकली क्या चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी पे उस एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर पर्सन की, लीडरशिप, मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कल्चरल फिट। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग ईच इंटरव्यूअर ऑल द फैक्टर्स टू असेस, ईच इंटरव्यूअर शुड बी गिवन ओनली 2 to 3 to own during a formal debriefing session। तो इंटरव्यूअर के पास खुद के भी क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके बारे में वो इंटरव्यू से क्वेश्चंस पुट अप कर सके। Ask people you like tougher questions। Then when you like a candidate, you naturally go into sales mode, ask softball questions and ignore or minimize negatives। To overcome this natural tendency, force yourself to ask tougher questions। बहुत बार लगता है कि ये कैंडिडेट मुझे अच्छा लगा और उससे हम बहुत ही सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, बट दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ सिलेक्शन। हमें उनसे टफर क्वेश्चंस पूछने चाहिए, देख कितनी नॉलेज है ये जानने के लिए। Let's treat people you don't like as consultants। When a
When a candidate make a weak first impression, we typically either tune out, ask. अगर कोई आपका इंटरव्यूअर जो है अब वो आपके रूम में आया इंटरव्यू देने और उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही बैड है, तो उससे क्या होगा, इंटरव्यूअर का मूड नहीं होगा उसका प्रॉपर इंटरव्यू लेने का, वो उससे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ऐसा पूछेगा जिसके वो जवाब न दे पाए। तो इस तरीके की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत बार फर्स्ट इंप्रेशन भले बेकार हो, बट बहुत बार वो पर्सन बाद में बहुत ज़्यादा काम का निकलता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देता है। तो हमें टाइम देना भी चाहिए और दूसरे पर्सन को देना भी चाहिए। Ignore factless decisions during debriefing sessions. Ignore assessments that include these terms. हमें कुछ टर्म्स को इग्नोर करना चाहिए जब हम सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। लाइक आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या थिंक कर रहे हैं, आपका लाइक डिसलाइक क्या है, बैड फिट, टू सॉफ्ट, एग्रेसिव, ये तो अच्छा नहीं है, ये सॉफ्ट बोलता है, ये सॉफ्ट नहीं बोलता, एग्रेसिव है, बैड लुकिंग है, नॉट फिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी चीजों से बाहर निकले, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हम इन चीजों से अगर बाहर निकलेंगे तभी हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। Then don't conduct short interviews. Short interviews नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स कैंडिडेट के साथ स्पेंड होने चाहिए कि उससे हम कैंडिडेट को जान सके, समझ सके, उसका बिहेवियर जज कर सके। सो दिस इज ऑल। नेक्स्ट इज कंडक्ट फोन इंटरव्यूज फर्स्ट। बिफोर फेस टू फेस इंटरव्यूज हमें फोन इंटरव्यूज ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करने चाहिए। बेसिकली इट इज फॉर 30 मिनट्स एक्सप्लोरेटरी फोन इंटरव्यू बिफोर मीटिंग द पर्सन इन पर्सन। रिव्यू द पर्सन वर्क हिस्ट्री, लुकिंग फॉर अचीवमेंट पैटर्न। तो इससे हमें काफ़ी आइडिया लग जाता है कि फेस टू फेस इंटरव्यू से पहले हमें टेलीफोनिक इंटरव्यू करने, इससे काफ़ी आइडिया लग जाता है हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉई और अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और उसका एक्सपीरियंस, मतलब काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन फोन पर जान सकती है। उसके बाद अगर सब कुछ हो गया है तो वो नेक्स्ट स्टेप के लिए, नेक्स्ट फेस टू फेस इंटरव्यू सेशन के लिए कॉल अप कर सकती है। सो दीज आर सम पॉइंट्स वी शुड keep in mind while doing selection to minimize the selection errors. अभी हमने minimize कैसे करना है selection errors को ये पढ़ा और साथ ही साथ selection errors होते क्यों है ये पढ़ा। So this is all for today and thank you.